Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners. Today we are going to read chapter number 7, Clever Mirchu, Hushyar Mirchu. Let's begin. A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी गांव में रहते थे. They had 7 children. उनके 7 बच्चे थे. All of them were boys और वो तमाम लड़के थे. The woodcutter and his wife, लकड़हारा और उसकी बीवी वर so poor, इतने गरीब थे that at times के बाज़-औक़ात they did not know, वो नहीं जानते थे where to get money, कि वो रकम कहाँ से लाएं to buy food, खुराक खरीदने के लिए for their children, अपने बच्चों के लिए. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि बाज़-औक़ात वो नहीं जानते थे कि अपने बच्चों की खुराक खरीदने के लिए रकम कहाँ से लाएं. The children were growing so fast. बच्चे तेज़ी से बढ़ रहे थे. That they always felt hungry, कि वो हमेशा भूख महसूस करते थे. The youngest son, सबसे छोटा बेटा, however, ताहम was the one who caused his parents the utmost anxiety, जो अपने वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह था. It's true, ये सच है that he did not eat much, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था. But this was because, लेकिन ये इसलिए कि he was so small, वो बहुत छोटा था. Indeed, मज़ीद ये कि when he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of a pepper, वो एक मिर्च के साइज़ का था. And that was why, और इसी वजह से he was named मिर्चू, उसका नाम मिर्चू रखा गया. Once it happened, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि that there was no rain for months on end, कि कई महीनों तक बारिश ना हुई. A great famine spread across the land, खित्ते में एक बहुत बड़ा कहत फैल गया. And the woodcutter soon had nothing to give to his family, और लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ ना था. All the savings were gone, तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी. And there was nothing left to eat, और खाने के लिए कुछ ना बचा था. We can no longer feed our children, हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते. The woodcutter told his wife, लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया. One night, एक रात, as they sat beside the empty earth, जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे. When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए उठेंगे, उनके लिए खाने को कुछ नहीं है. My dear, मेरी प्यारी, there is only one thing, सिर्फ एक चीज़, एक काम है that we can do, जो हम कर सकते हैं. We must take them into the forest, कि हम उन्हें जंगल में ले जाएं and leave them there, और उन्हें वहाँ छोड़ दें. Maybe, शायद some rich man find them, कोई अमीर आदमी उन्हें ढूंढ ले and takes them home, और उन्हें घर ले जाए. I am sure, मुझे यकीन है that he will take better care of them, वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा. The poor wife cried and cried. बेचारी बीवी बहुत चिल्लाई और रोई. She was full of sorrow, बहुत ज़्यादा गमगीन हुई to hear this, ये सुन के. But at last, लेकिन आखिरकार, as the night wore on, जब रात छा गई, she agreed to her husband's plan, वो अपने शोहर के मंसूबे से राज़ी हो गई. After all, she could not see her children die of hunger, क्योंकि अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी. She thought and thought, उसने सोचा और बहुत सोचा. But no other plan came to her mind, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा उसके जहन में नहीं आया. She wished, उसने ख्वाहिश की, she had only 3 children instead of 7, कि उसके 7 के बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते. They could have been fed well, उन्हें अच्छा खिलाती and brought up nicely, उनकी बेहतर परवरिश करती. As the woodcutter and his wife argued, जब लकड़हारा और उसकी बीवी आप बहस कर रहे थे, they raised their voices, उनकी आवाज़ें बुलंद होगी. The little मिर्चू had every bit of what they said, छोटे मिर्चू ने हर वो बात सुनी जो उन्होंने कही. Unlike his brother, अपने भाइयों के बरक्स, he was not asleep, वो सोया हुआ नहीं था. For a long time, काफ़ी देर तक he lay thinking, वो लेटा सोचता रहा what would be the best thing to do, कि वो क्या काम कर सकता है. As soon as it was twilight, जैसे ही मध्यम सी रोशनी छाई, he got up quickly, बहुत तेज़ी से उठा and crept out of the cottage and off he ran to the forest. वो रेंगते हुए झोंपड़ी से निकला और जंगल की तरफ भाग गया. He filled his pockets with
उसने अपनी जेबें भरी विथ स्मॉल वाइट स्टोन, छोटे सफ़ेद पत्थरों से। देन ही रैन बैक टू द हाउस, और फिर वापस घर की तरफ भागा। एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट asleep when his mother called him। और अपने बिस्तर पर लेट गया और खुद को सोया हुआ जाहिर करने लगा जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने लड़कों को बताया, यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम सब अपने वालिद की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करना। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, घर में खाना खरीदने के लिए कोई रकम नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के बहुत पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट, कि वो मुकम्मल तौर पर भूल के अबाउट देयर हंगर, अपनी भूख। एंड वर इन नो टाइम, और कुछ ही वक्त में ऑन द वे टू द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते की तरफ थे, विद देयर फादर लीडिंग, अपने वालिद की रहनुमाई में। द फॉरेस्ट वाज डार्क एंड लॉन्सम, जंगल तारीक और घना था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लेकिन लकड़हारा इतनी बेहतर तरीके से जानता था, डैट बिफोर लॉन्ग, कि जल्द ही दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जल्द ही जंगल के गहरे तरीन हिस्से में आ गए। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे दरख्त काटूंगा, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। एंड यू बॉयज़, और तुम सब लड़के, मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, तमाम शाखें इकट्ठी करना, एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स, इनको छोटे बंडल्स में बांधना। इट्स गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये एक मेहनत तलब काम है। विद डैट ही कट ट्रीज, के साथ ही उसने दरख्त काटे, विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, एंड सेट हिज 7 सन टू वर्क, और अपने 7 बेटों को काम पे लगाया। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स, जब लड़के लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, ऐसे कुछ ऐसा कि वो कर सकते थे। द वुड कटर नोटेड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया। एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, और वो दोनों वहाँ से खामोशी से खिसक गए। सी यू सून, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।